Hello student, this is part 3rd of photosynthesis in higher plants. In this part we will discuss about the Dark reaction and about the C3 or Calvin cycle. This Calvin cycle is also known as C3 cycle and it is also known as biochemical or biosynthetic phase. It is known as Calvin cycle because after the name of the Melvin Calvin, the discoverer of this pathway. It is known as C3 cycle because first stable compound formed is the 3-phosphoglyceric acid. The site of this dark reaction or C3 cycle is the stroma of the chloroplast. The carbon dioxide acceptor molecule is RUBP or ribulose 1,5-biphosphate. ATP and NADPH2, which was synthesized during the light reaction, is utilized or assimilated during the dark reaction to form the glucose molecule. Calvin cycle proceeds in 3 stages. First is the carboxylation, during which the fixation or assimilation of carbon dioxide takes place. Second step is the reduction of CO2 to glucose, and third is the regeneration of RUBP. First step is the carboxylation. It is the fixation of CO2 into a stable organic intermediate. Carbon dioxide combines with RUBP. This carbon dioxide combines with RUBP to form 3-phosphoglyceric acid in the presence of Rubisco enzyme. So this ribulose 1,5-biphosphate combines with carbon dioxide and a 3-carbon compound phosphoglyceric acid is formed. The enzyme is the Rubisco. This RUBP is a 5-carbon compound and there is 1 carbon compound. Carbon dioxide contains 1 carbon. So there is a phosphoglyceric acid is formed which is 3-carbon compound. So there are 2 molecules of phosphoglyceric acid are formed and total number of compound in 2 molecule of PGA becomes 6 carbon. It becomes 6-carbon compound. Next step is the reduction. It is also known as glycolytic reversal क्योंकि यहाँ पर जो स्टेप्स हैं वो ग्लाइकोलाइसिस के रिवर्स डायरेक्शन में वो स्टेप्स देखी जाती हैं. They are a series of reactions that lead to formation of glucose. 2 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH2 are used for the reduction of 1 molecule of carbon dioxide. So fixation of 6 molecules of carbon dioxide and 6 turns of cycles are required for the formation of 1 molecule of glucose. क्योंकि जो रिएक्शन हम लिखते हैं फोटोसिंथेसिस की 6CO2 plus H2O equal to C6 H12 O6 plus 6 O2. यहाँ पर हम देख रहे हैं ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है और इसीलिए हमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने की ज़रूरत पड़ती है, रिड्यूस करने की ज़रूरत पड़ती है. एक कैल्विन साइकिल में 1 कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 2 मॉलिक्यूल ATP के और 2 मॉलिक्यूल NADPH की ज़रूरत पड़ती है.
अगर हमें ग्लूकोज के लिए 6 कार्बन की ज़रूरत है तो हमें केल्विन साइकिल को के 6 टर्न्स की ज़रूरत पड़ेगी। 6 टाइम्स ये साइकिल प्रोसीड करेगी तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होंगे। तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए केल्विन साइकिल की 6 टर्न्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। ये जो स्टेप्स हैं ये ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल हैं, यानी ग्लाइकोलाइसिस को अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन में करें देखें तो ये रिएक्शंस पाई जाती हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बना था 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये ATP के साथ कंबाइन होता है और 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। फिर इसका रिडक्शन होता है 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड NADPH2 के साथ रिएक्ट करता है, इससे हाइड्रोजन लेता है और 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनता है। 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड अपने आइसोमर्स में कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और एक मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड और एक मॉलिक्यूल डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कंबाइन होकर फ्रक्टोज 1,6-बाईफॉस्फेट बनाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है फ्रक्टोज 1,6-बाईफॉस्फेट। यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होता है जिसकी वजह से फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बनेगा। फिर फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से आइसोमेराइजेशन होगा और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनेगा। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से फिर एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर रिलीज होगा और लास्ट में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो क्योंकि ये स्टेप्स ग्लाइकोलाइसिस की स्टेप्स हैं लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, इसीलिए इसको हम ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल कहते हैं। नेक्स्ट is the regeneration of the carbon dioxide acceptor molecule into RUBP is crucial if the cycle is to continue uninterrupted. साइकिल को कंटिन्यू रखने के लिए RUBP का रीजनरेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि RUBP कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है। अगर RUBP नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स नहीं किया जा सकता है और ग्लूकोज फॉर्मेशन भी नहीं होगा। इसलिए रीजनरेशन ऑफ RUBP एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है केल्विन साइकिल का। रीजनरेशन स्टेप्स रिक्वायर 1 ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन टू फॉर्म RUBP। रीजनरेशन में एक साइकिल में 1 ATP की ज़रूरत पड़ती है, यानी 6 साइकिल में 6 ATP की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर इस रीजनरेशन की कुछ स्टेप्स दी हुई हैं और ये लास्ट स्टेप में हम यहाँ देख रहे हैं कि ATP की ज़रूरत पड़ रही है, यानी राइबोलोज 5-फॉस्फेट को राइबोलोज 1,5-बाईफॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए एक साइकिल में 1 ATP की ज़रूरत पड़ती है। अभी हमने डिस्कस किया कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए केल्विन साइकिल की 6 साइकिल की ज़रूरत होती है, तो 6 साइकिल में यहाँ पर 6 ATP यूज हो जाएंगे। यहाँ पर जो ये स्टेप्स दी हुई हैं, ये यहाँ पे कुछ 3 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन कंपाउंड, 5 कार्बन कंपाउंड और सीडो हेप्टोलोज जैसे ये 7 कार्बन कंपाउंड यहाँ पर बनते हैं और लास्ट में RUBP का फॉर्मेशन होता है, यानी ये रीजनरेट हो जाता है। Next is the balance sheet of C3 cycle. C3 cycle mainly a mechanism of fixing atmospheric carbon dioxide into glucose. तो C3 साइकिल में ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में फिक्स किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है बाय मेकिंग यूज ऑफ हाइड्रोजन obtained from NADPH2 and energy in the form of ATP obtained from photophosphorylation. C3 साइकिल में इस CO2 को रिड्यूस करने के लिए हमें हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। ये हाइड्रोजन कौन सप्लाई करता है? NADPH2, और जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो ATP से मिलती है। NADPH2 और ATP हमें मालूम है कि ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं और साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के वक्त ये दोनों बायोमॉलिक्यूल्स बनते हैं। 1 molecule of carbon dioxide is fixed
in one turn of C3 cycle. एक C3 साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड का एक ही मॉलिक्यूल फिक्स होता है, लेकिन ग्लूकोज बनने के लिए 6 कार्बन की ज़रूरत होगी। अगर एक मॉलिक्यूल फिक्स होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है, एक ही कार्बन से ग्लूकोज नहीं बन सकता है, इसलिए 6 या 6 टर्न्स ऑफ साइकिल विल बी रिक्वायर्ड टू फिक्स 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए केल्विन साइकिल की 6 cycles या 6 turn are required, and in 6 turn 6 molecule of carbon dioxide are fixed and 1 molecule of glucose is produced. In each turn need 3 ATP and 2 NADPH2 molecule. एक साइकिल में, एक केल्विन साइकिल में 3 ATP और 2 NADPH2 की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए 6 टर्न में कितने ATP और NADPH2 की ज़रूरत पड़ेगी, हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी एक साइकिल में 3 ATP, तो 6 टर्न में 18 ATP, एक टर्न में 2 NADPH2, तो 6 टर्न में 12 NADPH2 की ज़रूरत पड़ेगी। नेट रिएक्शन ऑफ केल्विन साइकिल, यहाँ हमने देखा क्योंकि 6 टर्न यहाँ पर केल्विन साइकिल की हमें ज़रूरत पड़ती है ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए। यहाँ पर ये 6 होगा, तो 6 RUBP प्लस 6 कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इन 6 टर्न 18 ATP एंड 12 NADPH2 आर रिक्वायर्ड। 6 RUBP are produced, 1 molecule of glucose will be formed। तो 6 टर्न ऑफ केल्विन साइकिल से सिर्फ ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनता है। 18 ATP, 12 NADP and 12 PI are produced. So in that reaction we can see that 6 molecule of carbon dioxide are fixed by 6 molecule of RUBP and 1 molecule of glucose is produced. ये केल्विन साइकिल है। इस डायग्राम के ज़रिए हम इसको एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमने डिस्कस किया है बिकॉज 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल को रिड्यूस करना की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के जो 6 मॉलिक्यूल्स हैं, ये RUBP के 6 मॉलिक्यूल। RUBP कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेसर है C3 साइकिल में, ये इसको फिक्स करता है। RUBP कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 6 molecule of carbon dioxide combines with 6 molecule of REBP। यहाँ पर ये 1 कार्बन कंपाउंड है, ये 5 कार्बन कंपाउंड है, यानी टोटल एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और एक मॉलिक्यूल राइबोलोज का अगर हम मिलाएं तो 6 कार्बन बनते हैं। और यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के हैं और 6 मॉलिक्यूल RUBP के हैं, तो इनके मिलने से यहाँ पर टोटल 36 कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए। अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूल फर्स्ट स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है और ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है। तो 6 टर्न में यहाँ पर 6 कार्बन कंपाउंड्स यानी 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट बनते हैं। 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट को फिक्स करने के लिए मैं 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करने के लिए 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP की ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पर, और यहाँ पर 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट यहाँ पर बन रहा है। यानी यहाँ से एक फॉस्फेट निकलकर
बाईफॉस्फोग्लिसरेट के फर्स्ट कार्बन पर अटैच हो जाता है। इन 12 मॉलिक्यूल्स 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट में को रिड्यूस करने के लिए 12 NADPH2 की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें से 12 हाइड्रोजन जब इसमें ऐड होंगे तो हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड बनेगा। 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है जिसके 12 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। इन 12 मॉलिक्यूल्स में से दो मॉलिक्यूल्स ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के ग्लाइकोसाइटिक रिवर्सल के जरिए ग्लूकोज बनाएंगे। इससे ये ग्लूकोज बन जाता है। तो यहाँ से जो ये पूरा प्रोसेस है इसको हम रिडक्शन या ग्लाइकोसाइटिक रिवर्सल कहते हैं, क्योंकि ये स्टेप्स जो हैं ग्लाइकोसाइटिक की स्टेप्स हैं, रिवर्स डायरेक्शन में ये स्टेप्स हैं, तो इसलिए इसको ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल कहते हैं। जो फर्स्ट स्टेप था ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हुआ था, इस स्टेप को कार्बोक्सिलेशन कहते हैं, दूसरे स्टेप को रिडक्शन कहते हैं। और यहाँ से ये पूरी जो स्टेप्स हैं ये थर्ड स्टेप है और इस स्टेप को रीजनरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट यहाँ बनते हैं। इसमें से दो मॉलिक्यूल ग्लाइकोसाइटिक रिवर्सल में यूज हो जाते हैं टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। बाकी 12 में से दो मॉलिक्यूल यहाँ पर यूज हुए, तो 10 मॉलिक्यूल्स जो बचे, 10 मॉलिक्यूल्स 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUBP के साथ कंबाइन होते हैं एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट बना देते हैं। यहाँ राइबोलोज 5-फॉस्फेट से राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट बनने के लिए 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए हमें 6 टर्न ऑफ केल्विन साइकिल की ज़रूरत पड़ती है और इस 6 टर्न में 12 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर और 12 NADPH2 ये ग्लाइकोसाइटिक रिवर्सल में यूज हो जाते हैं। रीजनरेशन में 6 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP बनाने के लिए हमें 6 ATP की ज़रूरत पड़ती है। तो पूरे केल्विन साइकिल में कितने ATP की ज़रूरत पड़ेगी? 12 ATP यहाँ पर हैं और 6 ATP यहाँ हैं, यानी to produce 1 molecule of glucose, 6 molecule of CO2 are fixed and how many ATP? 18, 12 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 18 ATP और 12 NADPH2 की ज़रूरत पड़ती है। यह हम नेट रिएक्शन में देख चुके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ATP और NADPH2 जो किसी केल्विन साइकिल में यूज होते हैं एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने में, वो 18 ATP और 12 NADPH2 की ज़रूरत पड़ती है।